ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محقق حضرت علامہ سید منور علی صاحب مداری سے بات ہو رہی؟ جی جی بول رہا ہوں حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، اگر کچھ وقت ہو۔ پوچھیے۔ حضرت جاننا یہ چاہتا ہوں کہ سلسلہ مداریہ میں ملنگ بہت مشہور اور معروف ہستیوں میں گنے جاتے ہیں، اور عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ ملنگ کیا ہے۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ ملنگ اس کا معنی کیا ہے، اور ملنگ کون ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ملنگ سلسلہ عالیہ مداریہ کے مخصوص فقراء ہیں۔ جی۔ ملنگ وہ پاک باز گروہ ہے جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کر دیا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تبلیغ اسلام، خدمت خلق ان کا کام ہے۔ اہل و عیال سے کوئی غرض نہیں، شادی بیاہ کرتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور مصروف عبادت جماعت جو رہتی ہے اس کو ملنگ کہا جاتا ہے۔ خاص طور سے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے حضور مدار العالمین نے ملنگوں کی یہ جماعت تیار کی تھی۔ جی حضرت، ملنگ جو ہیں یہ کن سے تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی سرکار مدار پاک کے کسی خلیفہ سے ان کی نسبت رہتی ہے کیا؟ سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اجل حضرت سید محمد جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ بی بی نصیبہ کے صاحبزادے تھے، اور بی بی نصیبہ جب لاولد تھی تو مدار پاک کی دعا سے حضرت سید جمال الدین جان من جنتی پیدا ہوئے، اور جب وہ 12 برس کے ہو گئے تو مدار پاک کے ہمراہ کر دیے گئے، اور مدار پاک ان کو بغداد سے اجمیر شریف لے کر آئے۔ آپ نے اجمیر شریف میں انہیں کوکلا پہاڑی پر قلعے میں بٹھایا اور خود اطراف کے علاقوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ عرصے کے بعد جب حضور مدار العالمین اجمیر کی کوکلا پہاڑی کی طرف لوٹے تو دور سے سرکار جمال الدین جان من جنتی نے مدار پاک کو آتے ہوئے دیکھا جی۔ تو خوشی میں وجد میں کودنے لگے۔ جی۔ حضرت جمال الدین جان من جنتی فوت ہو گئے تھے، اور مدار پاک نے ان کے بال پکڑ کر ان کو زندہ کیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت سرکار جمال الدین جان من جنتی نے اپنے سر کے بال کبھی کٹائے نہیں تھے، اب تک کہ ان کے بال بھی کافی بڑے ہو گئے تھے، بال بھی بڑے بڑے تھے، اور یہاں یہ وجدانی کیفیت میں خوشی میں کود رہے تھے، تو لوگ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ تب تک سرکار مدار پاک بھی کوکلا پہاڑی پر تشریف لے آئے۔ لوگوں کی بھیڑ بھی دیکھی آپ نے، اور ان کو بھی اس قدر مست دیکھا تو آپ نے لوگوں کے درمیان تقریر فرمائی اور ان کو دعوت اسلام دی، تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ سرکار مدار پاک کو حضرت جمن جتی کی یہ ادا پسند آئی کہ ان کی اس ادا کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہوا، تو آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ تم ایسا ہی کیا کرو، یعنی شرع دمال کیا کرو۔ تب سے ملنگوں کی جماعت تیار ہونے لگی اور تبلیغ اسلام کے لیے لوگوں کو مامور کیا گیا، اور آج تک الحمدللہ ملنگ اس کام پر مامور ہے۔ جی ہلو جی۔ اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ملنگان کرام پر کچھ حضرات یوں کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، اور شریعت میں اتنے بڑے بال رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ شریعت میں ممانعت بھی نہیں ہے اتنے بڑے بال رکھنے کی، اور ان کا طریقہ صحابی رسول حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ جی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے سر کے بال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی نسبت سے کٹوائے نہیں تھے، ان کے بھی بال بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ جی۔ تو شریعت میں اتنے بڑے بال رکھانے کی ممانعت نہیں ہے۔ جی۔ اب وہ غلط فہمی میں ہے۔ شریعت میں وہ بال منع کیے گئے ہیں جو عورتوں کی طرح ہوں، ملنگوں کے بال عورتوں کی طرح نہیں ہوتے۔ جی۔ تو حضرت جیسے اب یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بال رکھتے ہیں، اور یہ لوگ غسل وغیرہ ان کے کیسے ادا ہوتا ہے، ایسے کچھ اختلاف بھی کیے جاتے ہیں عوام میں، کچھ بتا دیں۔ نہیں تو غسل وغیرہ بھی ہوتا ہے، غسل کیوں نہیں ہوگا؟ بال بھیگتے نہیں ہیں کیا؟ یہ بالوں کی جڑیں نہیں بھیگتی، راکھ ملتے ہیں تاکہ بالوں کی جڑوں تلک پانی راکھ کھینچ کے پہنچائے۔ اور ان کے بالوں میں شروع سے بچپن سے ہی راکھ رہتی ہے، سمجھے، راکھ ملی جاتی ہے، اور جب یہ نہاتے ہیں تو راکھ کے ذریعے سے
जी इनके पूरे सर तलक, बालों की जड़ों तलक पानी पहुंचता है। हजरत तो जैसे उससे क्यों नहीं होगा? एक बात ये भी कही जाती है कि मलंगों में कोई भी ऐसा नहीं गुजरा है जो यहाँ आवाम एतराज करती है, और कुछ ऐसे मौलवी हैं जो बयान करते हैं कि कुछ नहीं, बस इनमें कोई ऐसा नहीं गुजरा जो वक्त का कोई वली गुजरा हो या कोई बड़ी शख्सियत हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हजरत कुतुब गौरी भी मलंग थे। सुभान अल्लाह। आपका मजार शरीफ कर्नाटक में है क्या हजरत? कोलार में जी, कर्नाटक में है। सुभान अल्लाह जी। 12 साल तक उनका जनाजा इस दुनिया में घूम घूम कर तबलीग इस्लाम करता रहा। सुभान अल्लाह। सैयद शहबाज मलंग दीवान, आपका मजार जो है आंध्र प्रदेश में कर्नाटक के बॉर्डर पे करवरा एक जगह है, वहाँ है जी हजरत सैयद शहबाज मलंग ऐसे बाकरामत बुजुर्ग थे जी कि आप वहाँ जंगल में सोए हुए थे। वो पथरीला पहाड़ी इलाका है, वहाँ पानी नहीं है आसपास। जी आप आधे बाल अपने बिछा के और आधे बाल ओढ़ के सो गए। 14 साल तक सोते रहे। सुभान अल्लाह। और जो मिसवाक आप अपने हाथ में पकड़े हुए थे उस वक्त, जी उस मिसवाक में किल्ले फूटे और उनसे तनावत दरख्त हो गए 14 साल के अरसे में। इत्तेफाक से वहाँ का एक राजा उधर जंगल में शिकार को गया था पानी की तलाश में, इधर उधर भटक रहा था, तो उसने एक बाबा को सोता हुआ वहाँ पाया। सोचा कि बाबा को शायद पता हो कि यहाँ इलाके में पानी कहाँ है। इस गरज से उसने बाबा को जगा दिया जी और बाबा से पानी को पूछा। तो बाबा ने बतलाया कि यहाँ इलाके में कहीं पानी नहीं है, जी लेकिन हम अपनी लाठी फेंकते हैं, जहाँ ये हमारी लाठी गिरे जी वहाँ पानी निकलेगा। हाँ जी हजरत सैयद शहबाज मलंग दीवान ने अपनी लाठी फेंकी जी तो वो लाठी 7 किलोमीटर दूर जाके गिरी। अल्लाह अकबर। पत्थर पे वो लाठी गिरी और राजा के घोड़े ने अपने खुरों से जब उस पत्थर को तोड़ा है तो उसमें से पानी निकला। जी लगभग 2-2.5 फुट का गड्ढा है, हमने देखा है, और लगभग 1.5 फुट उसकी गहराई है। पानी निकला तो बादशाह के साथ में बहुत बड़ा लश्कर था, ऊंट घोड़े और इंसान तमाम थे। बादशाह ने बाबा से शिकायत की कि पानी तो कम है और हमारे साथ में बहुत बड़ा लश्कर है, ये सब कैसे सैराब हो सकते हैं। आपने कहा कि पिलाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। चुनांचे बादशाह का पूरा लश्कर सैराब हुआ, सारे जानवरों ने इंसानों ने पानी पिया और आज तक वो पानी उतना ही है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे ऐसे बाकरामत बुजुर्ग मलंगों में गुजरे हैं। जी बरेली के पास, जी हाँ जी जी बरेली के पास भरपूर शाह का नगला है। जी हजरत भरपूर शाह मलंग थे और उनकी करामत और विलायत का बड़ा चर्चा था। जी एक तवाइफ ने कहा कि हम इनका तकवा खत्म कर सकते हैं। जी बाबा तक वो बात पहुंची तो आपने कहा कि उसको इजाजत है और उसको चैलेंज है कि वो अपने फरेब इख्तियार करे और मुझे राय तकवा से अलग करके दिखाए। जी उस बस्ती और बाबा के बीच में एक नदी पहुंची थी। जब तवाइफ आपकी तरफ चली तो आपने नदी को इशारा किया तो नदी में सैलाब आ गया। जी तवाइफ कहने लगी कि ऐसे नहीं, मुझको करीब आने दो। आपने पानी को हुक्म दिया, पानी थम गया। तवाइफ उतर के आपके पास चली आई। पीपल की एक शाख थी, आपने उसके 2 टुकड़े किए, एक उस औरत के हाथ में दिया और एक अपने हाथ में रखा। आपने उसे जमीन पर गाड़ दिया और उससे कहा कि तू भी इसको गाड़ दे। जी जब कभी इसकी शाखें और पत्ते दोनों के आपस में मिल जाएंगे तब हम तुम भी मिल सकते हैं, और अगर ये कभी ना मिले तो हम तुम भी कभी नहीं मिलेंगे। दोनों ने जमीन पर वो शाख गाड़ दी और दोनों हरी हो गई और उनसे शाखें और पत्ते निकलने लगे। आज भी दोनों पेड़ मौजूद हैं भरपूर शाह के नगले में, उनके मजार के पास आज भी दोनों पेड़ मौजूद हैं। होता ये है कि जब एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त की तरफ बढ़ती है तो इससे पहले कि आपस में वो मिल पाए, टकरा पाए, झड़ जाती है सूख के। अल्लाह। और जब पत्ते जमीन पर गिरते हैं तो एक दरख्त के पत्ते इधर, दूसरे दरख्त के पत्ते उधर, आज तलक उस दरख्त के पत्ते तलक हवा में बिखर के भी नहीं मिलते। सुभान अल्लाह। ये आज भी है हजरत? ये आज भी है भरपूर शाह के नगले में, बरेली के पास में देखा जा सकता है। जी तो मलंगों में तो बड़े बड़े बाकरामत बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत अब्दुल रहमान उर्फ बाबा हाजी मलंग बहुत मशहूर हैं, वो भी तो मलंग ही थे। मुंबई में आपका मजार शरीफ?
जी, बम्बई कल्याण में। सुभान अल्लाह। हजरत बाबा कपूर मजदूब मलंग ग्वालियर शरीफ में। ग्वालियर में। सुभान अल्लाह। जी। बड़े बड़े साहिब करामत और साहिब विलायत बुजुर्ग गुजरे हैं मलंगों में। अब दौरे हाजिर में अगर कोई मान लो उसूल से हटा हुआ है जी, तो ये उसकी अपनी खता है। हाँ हजरत, जैसे ये चीज एतराज के तौर पर आज सिलसिला मदारिया पर इस पर तान होता और उन पाक मलंगबाज पर कुछ लोग इस तरीके से तान करते हैं कि देखो इन मलंगों को। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, मलंग हैं और वो नशा कर रहे हैं या नमाजों से हटे हुए हैं, और उसका एतराज सीधे सीधे उन पाकबाज मलंग पर या सिलसिला मदारिया पे किया जाता है। देखो ऐसे मलंग हैं इनके यहाँ। बात यह है कि दुनिया का एक तरीका है, एक आम दस्तूर है कि जी। ताल में एक मछली गंदी होती है तो सभी को कहने लगती है, लेकिन इंसाफ ये नहीं है। इंसाफ ये है कि जो गंदा हो उसे गंदा कहा जाए और जो अच्छा हो उसे अच्छा कहा जाए। जी। कोई भी मलंग अगर जायज़ शरीयत से हटा हुआ है जी। तो ये उसकी अपनी खता है, न कि सिलसिला आलिया मदारिया के उसूल और तालीमात का। जी। जैसे कि इस्लाम में शराब हराम है, जुआ हराम है, जिना हराम है, झूठ हराम है, चोरी हराम है, जी। और इस्लाम में इन चीजों की हुर्मत के बावजूद मुसलमान करता है। मुसलमान जी। जुआ खेल रहा है, मुसलमान शराब पी रहा है, मुसलमान जिना कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है। जी। तो मुसलमान की इस बदअमली से इस्लाम पर कोई एतराज नहीं होता। बेशक। ठीक इसी तरह किसी मलंग या किसी भी मदारी के किसी भी खिलाफ शरीयत काम से हरगिज हरगिज सिलसिले आलिया मदारिया की तालीमात और उसके उसूलों पर एतराज नहीं होना चाहिए। जी। अगर सिलसिले मदारिया में खुदा न खास्ता ऐसे गंदे कामों की इजाजत दी गई हो जी। तब तो सिलसिले मदारिया काबिल एतराज है। जी। लेकिन सिलसिले मदारिया में जब इन चीजों को आराम किया गया है, बुरा कहा गया है, तो सिलसिले मदारिया पर एतराज करना गलत है। जो शख्स ऐसी हरकतों में मुलव्विस हो, मुब्तला हो, उसी पर उंगली उठाई जाए। हजरत, क्या ये बात दुरुस्त है कि सिलसिला आलिया मदारिया जो है वो हिंदुस्तान में पहला ऐसा सिलसिला है जिसने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की तालीमात को आम किया? जी बेशक, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में। सरकार मदाउल आलमीन बनस्ते नफीस खुद मुल्क मुल्क, सूबा सूबा, शहर शहर तशरीफ ले गए और आपने वहाँ दावत इस्लाम दी, तबलीग का काम किया। जी। हजरत तो 96 साल की हुजूर मदाउल आलमीन की उम्र शरीफ हुई है, और आपकी ये तवील हयात जी दीन पाक की तबलीग को इशाअत ही में गुजरी, और आपके बाद आपके खुलफा और खुलफा के खुलफा आज के दौर तक ये काम अल्लाह का फजल करम जारी सारी है। हजरत, बस एक आखिरी सवाल कि अगर कोई शख्स इस बुनियाद को बना करके सरकार मदारी पाक पर या सिलसिला मदारिया पर या मशाइख मदारिया पर एतराज ही नहीं, बल्कि आपको कुछ मौलवियों के बरगलाने के ताल्लुक से वो सीधे सीधे यूं कहना स्टार्ट करता है कि लगता है ये लोग सुन्नी ही नहीं है, यानी सीधे सीधे सुन्नियत से खारिज करने की कोशिश करते हैं, क्या ये तरीका अहले इल्म के नजदीक या अहले हुनर के नजदीक काबिल दुरुस्त या अव्वल तो ये तरीका जाहिलों का तरीका है, और दूसरी बात ये बिदतियों का, गुमराहों का तरीका है कि सुन्नियों को सुन्नियत से खारिज करार दें या सुन्नियत में शक करें, वो भी बिला वजह शरई, महज बुग़्ज़ व हसद में ही। जी। बुग़्ज़ व हसद की बुनियाद पर लिखे गए न तो फतवों का कोई एतबार है जी, और ना ऐसे मौलवियों और मुल्लाओं की किसी तहरीर और तकरीर का कोई भरोसा। सुभान अल्लाह। हजरत, इंशाअल्लाह ये आपने जिस तरीके से जवाब दिया है, मुझे उम्मीद है कि ये बयानात लोगों को बहुत ज़्यादा इस्लाही साबित होंगे और लोग सुन्नियत की तरफ, मदारियत की तरफ, हुसैनियत की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह फिर से राब्ता करते हैं किसी और मौजू को लेकर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।